Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will discuss a new chapter of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which is a maintenance. Maintenance of wife, children and parents, we will discuss in this particular lecture. Part 1 we will discuss today and the part 2 we will discuss later on. So, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 144 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करता है कब वाइफ या चिल्ड्रन या पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। देखिए, the main aim of section 144 is to protect the right of wife, children and parents. Section 144 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is inserted with an aim to protect the rights of wife, children and parents. Wife, child और parents के right को protect करने के लिए section 144 आया है। The support which one person who is bound by law to do so given to another for his living. For example, a father is bound to provide maintenance for his children and child is required by law to maintain his father and mother, and when they cannot support themselves and has a liability to maintain them. So when father is having a duty to maintain his children but father fails to maintain his children, then children will be entitled to claim maintenance from his father. Likewise, if husband is having ability to maintain his wife, but if he fails to maintain his wife, then wife will be entitled to claim maintenance from his husband. तो husband अगर मेंटेन नहीं कर रहा है वाइफ को, वाइफ सेक्शन 144 में मेंटेनेंस फाइल कर सकती है। चिल्ड्रन को अगर फादर मेंटेन नहीं कर रहा है तो चिल्ड्रन फादर के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर सन अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, उसकी ड्यूटी है मेंटेन करने के लिए, अगर वो मेंटेन नहीं करता है तो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने सन के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 144 आया है। A periodic monetary sum paid by one spouse for the benefit of the other upon separation or the dissolution of marriage is also called alimony or spousal support. तो maintenance which is provided by the husband to his wife is also called as alimony or spousal support. इसको spousal support भी कहा जाता है, alimony भी कहा जाता है। तो यही था इंट्रोडक्शन कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड। अब हम एक्चुअल प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 144 का टाइटल क्या है, देखिए, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। द section starts from the wording, subclause 1 of section 144 starts, if any person having sufficient means neglect or refuses to maintain। अब जो ये पहला वर्डिंग ही है, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, ये तीन कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। पहला है एनी पर्सन, सफिशिएंट मींस, neglect or refuses to maintain. One by one we will try to discuss all these three concepts. The first one is who comes under the category of any person, because the wording of section 144 subclause 1 starts from if any person having sufficient means neglect or refuses to maintain. Any person includes father, son and husband, but does not include mother, daughter and wife. But married daughter is included in any person. So who comes under the category of any person? Father, son and husband comes under the category of any person. It means from father the children will be entitled to claim maintenance, from son parents will be entitled to claim maintenance, from husband wife will be entitled to claim maintenance, because father, son and husband comes under the category of any person. Any person के कैटेगरी में आ रहे हैं फादर, सन और हस्बैंड। फादर से अपने बच्चे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, सन से अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, हस्बैंड से अपनी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बट इट डज नॉट इंक्लूड मदर, डॉटर, वाइफ। इट मींस द चिल्ड्रन कैनॉट क्लेम अ मेंटेनेंस फ्रॉम मदर, parents cannot claim a maintenance from daughter, husband cannot claim a maintenance from wife, because these three person doesn't comes under the category of any person. तो any person में ना तो मदर आती है, ना तो डॉटर आती है, ना तो वाइफ आती है। हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है, पेरेंट्स डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, या
चिल्ड्रंस मदर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनी पर्सन में कौन आ रहा है, ध्यान में रखिए, फादर, सन और हस्बैंड। समटाइम्स मैरिड डॉटर्स इंक्लूड इन एनी पर्सन, कभी कभी मैरिड डॉटर एनी पर्सन में आती है। फॉर एग्जाम्पल फादर एंड मदर है, उनको कोई लड़का ही नहीं है, और एक मैरिड डॉटर है जिसके पास इतनी सफिशिएंट मींस है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सके, तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स अपनी मैरिड डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर सन है और सन के पास सफिशिएंट मींस है तो सन से ही मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, डॉटर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। एनी पर्सन में कौन आ रहा है, फादर, सन और हस्बैंड। फिर देखिए सफिशिएंट मींस, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस, सिर्फ एनी पर्सन नहीं चलेगा, उसके पास सफिशिएंट मींस भी होना जरूरी है। सो एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस। सो व्हाट एग्जैक्टली द सफिशिएंट मींस मींस? सफिशिएंट मींस का मतलब क्या है, देखिए, the means does not signify only visible means such as property or employment. Sufficient means does not mean only visible means just like a property or employment. Sufficient means का मतलब सिर्फ जो visible है, जो दिखने वाले means है वही नहीं है, जैसा कि employment, नौकरी दिखने वाली है, किसके पास है sufficient means, property दिखने वाली चीज है। इसका मतलब नहीं है क्या सिर्फ प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयमेंट ही कंसीडर नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए कि पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है या नहीं है। इफ द पर्सन इज हेल्दी एंड एबल बॉडीड, ही इज सपोज्ड टू हैव अ सफिशिएंट मींस। सपोज इफ द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, द पर्सन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, but he is able bodied, if he is healthy then he is supposed to be have a sufficient means। तो अगर पर्सन बेरोजगार है, पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अगर वो हेल्दी है, एबल बॉडीड है, हट्टा कट्टा है, तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है। ठीक है, देन ही कैन नॉट अवॉइड लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो सपोज इफ द हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड, he can't avoid his liability by mere saying that I am unemployed, that's why I am having no liability to maintain my wife। अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, लेकिन हट्टा कट्टा है, तो अपनी लायबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता, उसको वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एबल बॉडीड है, हट्टा कट्टा है, तो उसके पास सफिशिएंट मींस है, ऐसा माना जाएगा। देन sufficient means have reference to the earning capacity। Sufficient means doesn't means only the earning of the person, but the person's earning capacity will be considered while deciding whether the person is having sufficient means or not। तो पर्सन की अर्निंग कंसिडर नहीं की जाएगी, अर्निंग तो कंसिडर की ही जाएगी, लेकिन अगर पर्सन की अर्निंग नहीं है, तब भी अगर उसकी कैपेसिटी है अर्न करने की, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कंसिडर की जाएगी, ये डिसाइड करने के लिए कि उसके पास सफिशिएंट मींस है या नहीं है। तो हमने क्या डिस्कस किया, एनी पर्सन में कौन आएगा, फिर उसके बाद सफिशिएंट मींस का मतलब क्या है, हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ द हस्बैंड वाज नॉट कंक्लूसिव टू सच डिटर्मिनेशन दैट हिज कैपेसिटी टू वर्क एंड अर्न इज मटेरियल। कि पर्सन का इंसॉल्वेंसी, अगर पर्सन इंसॉल्वेंट है तो इंसॉल्वेंसी के बेस पे वो सफिशिएंट मींस नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की जो शक्ति है, कैपेसिटी है, वो कंसिडर की जाएगी, क्या डिसाइड करने के लिए उसके पास सफिशिएंट मींस है कि नहीं है। मतलब ये हो गया कि इंसॉल्वेंट भी है तब भी उसके पास सफिशिएंट मींस हो सकते हैं और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, अली हुसैन वर्सेस बीबी फरीदा खातून में बताया गया है, इट हैज बीन हेल्ड दैट व्हेन द हस्बैंड इज एबल बॉडीड पर्सन, इट हैज टू बी इन्फर्ड दैट ही has the means to pay the maintenance। if the husband is able bodied, he is having a means to pay the maintenance। अगर एबल बॉडीड है हस्बैंड, हट्टा कट्टा है, भले ही वो कमाता नहीं है, फिर भी उसके पास सफिशिएंट मींस है, ऐसा माना जाएगा और उसको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा अपने वाइफ को। इन सेवरल अदर केसेस इट हैज बीन हेल्ड दैट इवन इफ द हस्बैंड मे बी इंसॉल्वेंट। अब बहुत सारे केसेस में डिसाइड हो गया है कि अगर हस्बैंड इंसॉल्वेंट है, प्रोफेशनल बेगर, भिखारी है, माइनर, अगर माइनर है या मॉन्क है, साधु है, but he must support his wife so long as he is able bodied and can eke out his livelihood। बात ध्यान में रखिए कि पर्सन ये नहीं कह सकता है कि मैं दिवालिया हूं, पर्सन ये नहीं कह सकता है कि मैं भिखारी हूं, पर्सन ये नहीं कह सकता है कि मैं माइनर हूं या मैं साधु हूं, मोह माया मैंने सब छोड़ चुका हूं। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल एबल बॉडीड है और वो कमा सकता है, तो उसको कमाना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। ही कांट अवॉइड लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजन। अवॉइड नहीं कर सकता है वो लायबिलिटी को। अब देखिए,
एनी पर्सन को हमने डिस्कस किया, हैविंग सफिशिएंट मींस, वर्डिंग क्या है सब क्लॉज 1 के, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। अब एनी पर्सन में हस्बैंड आ गया, अगर एबल बॉडीड है तो सफिशिएंट मींस भी है, बट कब हस्बैंड लायबल रहेगा, नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। नेग्लेक्ट मींस समथिंग मोर देन मेयर फेल्यूर और ओमिशन। अब बात ध्यान में रखिए कि हस्बैंड को कब उसके वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, क्या हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है। दूसरा, हस्बैंड अगर नेग्लेक्ट कर रहा है उसके वाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब नेग्लेक्ट का मतलब ये होता है मेयर फेल्यूर और ओमिशन, समथिंग मोर देन मेयर फेल्यूर और ओमिशन। फेल्यूर या ओमिशन से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड ने अगर अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो सैटरडे को वीकेंड पे उसको मूवी बताने लेकर जाएगा, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन में नहीं आएगा। नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन का फेल्यूर से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें क्या होगा कि उसका कहीं और रिलेशन चल रहा है, किसी और के साथ रिलेशन है उसका, ये नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन माना जाएगा। देखिए, इन केस ऑफ चाइल्ड मेयर फेल्यूर और ओमिशन में अमाउंट टू नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। अगर बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर फादर है, तो अगर फादर फिर खाली फेल्यूर भी है, फादर उसको बेसिक चीजें नहीं दिला रहा है, तो वो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन में आएगा, बट हस्बैंड केस में नहीं आएगा। सब्सिक्वेंट मैरिज बाय हस्बैंड इज अ क्लियर प्रूफ ऑफ नेग्लेक्ट। अगर हस्बैंड दूसरी मैरिज करता है तो ये नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस की डेफिनेशन में आएगा और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी पहली वाइफ को। तो नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन एट द हैंड्स ऑफ हस्बैंड जब तक नहीं होगा, जब तक हस्बैंड की तरफ से नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू मेंटेन नहीं आएगा, तब तक वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। Cruel and inhuman behavior of the husband is nothing short of a neglect, and wife has a right to refuse to live with her husband. If the behavior of husband is cruel, then wife will be entitled to live separately from his husband and her husband, and she will be entitled to claim maintenance, because cruelty itself it amounts to neglect or refuses to maintain. Cruelty, neglect or refuses to maintain में आएगी। husband का अगर cruel behavior है तो wife से दूर रह सकती है, और ये नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन में आएगा। तो एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन किसको, फर्स्ट हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। देखिए, अब शुरुआत से हम डिस्कस करते हैं। एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट टू रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। सेकंड, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। Or third, his legitimate or illegitimate major child unable to maintain themselves due to any physical or mental abnormality. And the fourth one is his father and mother unable to maintain himself or herself. अब one by one ये चारों हम डिस्कस करेंगे कि पहले कौन वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। If any person having sufficient means neglect or refuses to maintain his wife अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर मैं हूं हस्बैंड फॉर एग्जांपल, तो मैं एनी पर्सन में आ गया, मेरे पास सफिशिएंट मींस है, अगर मेरे वाइफ को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं मेंटेन करने से, तो मेरी वाइफ क्या होगी, और अगर मेरी वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है तो शी विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम मी। अब हिज वाइफ मींस ओनली ए लेजिटिमेट वाइफ और लीगली वेडेड वाइफ। वाइफ कौन सी होगी, लीगली वेडेड वाइफ विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है कि लिव इन वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि कंसिडरेबल टाइम तक अगर कोई दो मेल और फीमेल अगर साथ में रह रहे हैं तो वो जो फीमेल है वो वाइफ के डेफिनेशन में आ जाएगी। तो लीजिटिमेट लीगली वेडेड वाइफ विल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। द सेकंड वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, वो वाइफ के डेफिनेशन में नहीं आएगी। डिवोर्स्ड वुमन इज स्टिल टू बी कंसिडर्ड एज वाइफ सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड। सो divorcee, so long as she remains unmarried, she will be considered as a wife and she will be entitled to get maintenance. तो डिवोर्सी है, जब तक वो दूसरी मैरिज नहीं करती तो पहले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और वो वाइफ के डेफिनेशन में ही आएगी। देन सेकंड वाइफ चिल्ड्रन इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। सेकंड वाइफ के जो चिल्ड्रन है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये केस में खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में आया है। तो हिज वाइफ में कौन आएगा, लीगली वेडेड वाइफ आएगी। अब अनेबल टू हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। देखिए सविता बेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेयर द हस्बैंड हैड डूप्ड द सेकंड वाइफ by not revealing to her the fact of her earlier marriage
or has been held by the Supreme Court that the husband cannot deny maintenance to his second wife under section 125 of CRPC. He cannot be permitted to take advantage of his own wrong by raising the contention that such second marriage during the subsistence of his first marriage being void under the Hindu Marriage Act 1955, the second wife was not entitled to maintenance as she was not his legally wedded wife. In this particular case, husband duped his second wife by concealing his earlier marriage, and that's why the Supreme Court held in this particular case that the husband cannot take the advantage of his own wrong, and that's why husband is liable to maintain his second wife. बात ध्यान में रखिए, पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी किया उसने, दूसरी वाइफ को धोखा दिया। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकंड वाइफ को भी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब हस्बैंड बाद में चल के ये डिफेंस नहीं ले सकता कि ये मेरी दूसरी वाइफ है और पहली मैरिज अगर है सबसिस्टेंस में तो दूसरी मैरिज लॉफुल मैरिज नहीं होती हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो अपनी ही गलती का खुद हस्बैंड बेनिफिट नहीं ले सकता। इस सिनेरियो में सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट किया था कोर्ट ने। अब देखिए कौन सी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। वाइफ कैसी होना चाहिए? अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। इनएबिलिटी ऑफ द वाइफ टू मेंटेन हरसेल्फ इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू ग्रांटिंग मेंटेनेंस। वाइफ शुड बी अनेबल। वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तभी मेंटेनेंस क्लेम कर सकेगी, अदरवाइज नॉट। Unable to maintain herself means that it covers the means available to the wife while she was living with her husband. So whatever the means she was having when she was living with her husband, if the same means available after separation, that she is having sufficient means. But if the means available after divorce is less than the means available when she was living with her husband, then she comes under the category of unable to maintain herself. तो अगर वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए जो भी मीन्स अवेलेबल थे, अगर वैसे ही मीन्स सेपरेशन के बाद है तो एबल टू मेंटेन हरसेल्फ में आएगी। लेकिन जो मीन्स हस्बैंड के साथ रहते हुए अवेलेबल थे उससे कम अगर मीन्स अवेलेबल है आफ्टर सेपरेशन तो वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ में आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि हस्बैंड के साथ रहते हुए अगर वो एसी में रहती थी और हस्बैंड के बाद वो अगर कूलर में रह रही है, एसी नहीं है, तो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ में वो आ सकती है एंड शी विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। देखिए रामदयाल वैश्य वर्सेस अनीता कुमारी, द इनकम ऑफ द वाइफ्स पेरेंट्स वुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द एबिलिटी ऑफ वाइफ टू मेंटेन हरसेल्फ। तो अगर वाइफ की एबिलिटी टू मेंटेन हरसेल्फ अगर डिसाइड करना है तो वाइफ की अर्निंग को कंसिडर करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स की, उसके फादर की अर्निंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वाइफ की खुद की इनकम इतनी है कि वो खुद को मेंटेन कर पा रही है तो वो एबल टू मेंटेन हरसेल्फ में आएगी, किसी और की इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, हर ओन इंडिविजुअल इनकम वुड बी रिलेवेंट। देखिए अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ में भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेंस डज नॉट नेसेसरली मीन टू लीड द लाइफ ऑफ एन एनिमल feel like an unperson to be thrown away from grace and roam for her basic maintenance somewhere else। तो जानिए कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेंस का मतलब जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना नहीं है कि कोई पर्सन हस्बैंड के साथ रहते हुए अलग था, जब डिवोर्स हो गई या सेपरेट हो गए तो वो अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, खुद के मेंटेनेंस के लिए उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, तो वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रही है। इसका मतलब वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है एंड शी विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। बबीता बिष्ट वर्सेस धर्मेंद्र सिंह बिष्ट, इस केस में क्या हुआ था? पार्टीज वेयर मैरिड ऑन 7 मई 2006, 7 मई 2006 को उनकी शादी हो गई एंड सेपरेटेड ऑन 15 2006 एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी वाज फाइल्ड ऑन 29/11/2006। तो शादी हुई उनकी 7 मई 2006 को, सेपरेट हो गए 15 अक्टूबर 2006 को, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल हुई सेक्शन 125 सीआरपीसी में 29 नवंबर 2006 को, और 21/2/2008 को कोर्ट ने ऑर्डर किया इंटरिम मेंटेनेंस का और ग्रांट किया उसने 30% ऑफ ग्रॉस इनकम। जो हस्बैंड की 30% ग्रॉस इनकम थी उसका उसने ऑर्डर किया, जो ग्रॉस इनकम है उसका 30%। आफ्टर पार्टीज लेट देयर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट रिड्यूस द अमाउंट टू 15 ऑन द 29/4/2015। 29 अप्रैल 2015 को फाइनल जजमेंट दिया और जो ग्रॉस इनकम का 30% था उसका 15% मेंटेनेंस अमाउंट ग्रांट किया। इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट बाय ऑर्डर डेटेड 21 February 2008 interim maintenance was fixed at 30% of the gross income as there are no children from the wedlock। कि उसको 30% क्यों उसने
21 फरवरी 2008 को ग्रांट किया था, क्योंकि उनको कोई बच्चे नहीं थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट पास द ऑर्डर ऑन 29 May 2019 that petitioner is held entitled to 30% of the gross income of the respondent after minimum statutory deduction। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन पास किया 29 मई 2019 को कि हस्बैंड को 30% उसके ग्रॉस इनकम का वाइफ को एज अ मेंटेनेंस अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये केस में ये डिसाइड हुआ था। तो एक क्या हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ वाला कंसेप्ट है। एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। So the second person who will be entitled to claim maintenance under section 144 of BNSS is a minor child. Whether it may be the legitimate or illegitimate minor child will be entitled to claim maintenance from their father if they are unable to maintain themselves. Minor है तो unable to maintain themselves में ही आएंगे, तो minor children will be entitled to claim maintenance from their father. Legitimate or illegitimate दोनों. So basis is paternity irrespective of its legitimacy or illegitimacy. When the paternity is established, the child will be entitled to claim maintenance from his father. तो अगर चिल्ड्रन की पैटर्निटी एस्टैब्लिश होगी, पता हो गया कि ये इसका फादर है, तो वो फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 144 ऑफ BNSS. Paternity is not established, the child is not entitled to get the maintenance. If the paternity is not established, they will not be entitled to get maintenance. फादर पैटर्निटी अगर स्टैब्लिश नहीं हुई, सबसे पहले अगर बच्चे को मेंटेनेंस क्लेम करना है तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं जिससे मेंटेनेंस क्लेम कर रहा हूं वो मेरा फादर है। अगर पैटर्निटी स्टैब्लिश होती है तो ही मेंटेनेंस मिलेगा, और अगर पैटर्निटी स्टैब्लिश होगी ही नहीं तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मदर्स रीमैरिज वुड नॉट अफेक्ट माइनर्स राइट ऑफ मेंटेनेंस। इफ द मदर रीमैरिज इट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, एक ही वाइफ थी, डिवोर्स हो गया, उसके बच्चे फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर वो वाइफ जिससे डिवोर्स हो गया वो दूसरी मैरिज करती है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों को तब भी मेंटेनेंस मिलेगा फादर से। ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन माइनर चिल्ड्रन अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। थर्ड वन इज मेजर चिल्ड्रन, illegitimate or legitimate major children if they are unable to maintain themselves due to any physical or mental abnormality। अगर कोई मेजर चाइल्ड है, 18 साल के ऊपर भी एज हो गई है, लेकिन अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो मेंटली या फिजिकली अफ्लिक्टेड है और उस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो मेजर होने के बावजूद भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने फादर से। यासीन भाई वर्सेस रिजवान बानू, देखिए, इट हैज बीन हेल्ड दैट in a case where the child on account of physical disability is unable to maintain himself even if he attains majority, the case would be covered under the provision of section 125 subclause 1C of CRPC। तो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी के वजह से मेजर होने के बावजूद भी वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो मेजर चाइल्ड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है सेक्शन 125 सबक्लॉज 1C में। तो मेजर चाइल्ड है लेकिन मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको भी मेंटेनेंस मिलेगा। एंड द कोर्ट वुड बी विद इन इट्स पावर टू ऑर्डर मेंटेनेंस इफ इट वाज satisfied that there is neglect or neglect or maintain the child। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा पास अगर ये प्रूव होता है कि फादर उसको नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन करने से, तो फादर को ऑर्डर पास किया जाएगा मेंटेनेंस के। लास्ट है हिज फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लास्ट कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस? फादर और मदर। अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो वो सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द वर्ड हिज इन क्लॉज डी इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, देयरफॉर अ मैरिड डॉटर इज लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। विजय अरबत वर्सेस काशीराव, इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया द वर्ड हिज यूज्ड अंडर सेक्शन 144, यहां पर सेक्शन 125 सब क्लॉज 1(4) में जो डी में जो डिस्कस किए वाला है, हिज इंक्लूड्स हर, मतलब मेल और फीमेल दोनों आएंगे उसमें। एंड इवन अ मैरिड डॉटर वुड बी लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स, कि कभी कभी मैरिड डॉटर भी लायबल होगी उसके पेरेंट को मेंटेन करने के लिए। जनरली क्या होता है, सन ही लायबल है, पेरेंट्स फादर और मदर सन से ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बट अगर सन नहीं है और डॉटर है
और डॉटर के पास सफिशिएंट मीन्स है, उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सके, तो उस सिचुएशन में फादर और मदर मैरिड डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट रिफ्यूजेस टू मेक अ मंथली अलाउंस, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मंथली अलाउंस पास करेगा। देखिए यहां पर सरोज गोविंद मुक्काबार वर्सेस चंद्रकलाबाई पोलसेटवार, ये केस है। इट हैज बीन हेल्ड दैट a mother-in-law is entitled for maintenance from her daughter-in-law if she is unable to maintain herself. In this particular case, the court held that the daughter-in-law is liable to maintain her mother-in-law. कोर्ट ने बहू को अपने सास को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर दिया, यानी बहू को लायबल ठहराया अपने सास को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस केस में कुछ अलग ग्राउंड्स थे। देखिए क्या था ग्राउंड्स। इन दिस केस द daughter-in-law was appointed on compassionate ground on the death of her husband who was only the son of the claimant. जो क्लेमेंट थी उसका सन था, और वो सन की डेथ के बाद उसकी बीवी को यानी डॉटर इन लॉ को कंपेशनेट ग्राउंड पे, अनुकंपा में उसको उसके हस्बैंड के जगह पर उसको नौकरी दी गई थी। और जब वो नौकरी एक्सेप्ट कर रही थी तो नौकरी एक्सेप्ट करते वक्त उसने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं मेरी सासू को मेंटेन करोगे, मेरी मदर इन लॉ को मेंटेन करोगे। ऑन अकाउंट ऑफ दैट कोर्ट पास द ऑर्डर दैट डॉटर इन लॉ इज लायबल टू मेंटेन हर मदर इन लॉ, वो मदर इन लॉ को मेंटेन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड के मरने के बाद हस्बैंड की नौकरी उसके वाइफ को गई और वो हस्बैंड अकेला लड़का था उसके माँ का, इसलिए वाइफ को नौकरी जाने के बाद एक अंडरटेकिंग दी थी वाइफ ने कि मैं मेरे सास को मेंटेन करूंगी। और उस ग्राउंड पर कोर्ट ने डॉटर इन लॉ को कहा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सास को मेंटेन करना। देखिए अब जो प्रोविजन है, देखिए यहां पर क्या है, अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्संस टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब क्या होगा कि किसी ने, सपोज वाइफ ने रहने दो या चिल्ड्रंस ने रहने दो या पेरेंट्स ने अगर मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल किया, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है, कोर्ट को ये लगता है कि हाँ हस्बैंड ने नेग्लेक्ट किया, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है, तो वो ऑर्डर पास करेगा मेंटेनेंस का। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड रेफर्ड टू इन क्लॉज बी to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such female child, if married, is not possessed of sufficient means. अब ध्यान में रखिए कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल चाइल्ड ने अगर मेंटेनेंस क्लेम किया है तो फीमेल चाइल्ड को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास कर सकता है। उसके फादर को यह कह सकता है कि जब तक वो फीमेल चाइल्ड मेजॉरिटी अटेंड ना कर दे तब तक तुमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। भले ही उसकी मैरिज हो गई है और मैरिज होने के बाद उसके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस नहीं है, तो फादर को ही ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, जब तक वो मेजर ना हो तुमको ही मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्संस टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। मतलब यहां पर प्रोवाइडेड दैट में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, मतलब एप्लीकेशन फाइल किया तो कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट कर सकता है। इंटरिम मेंटेनेंस कब तक होगा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा उस मेंटेनेंस के एप्लीकेशन का। प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द second proviso shall as far as possible be disposed of within 60 days from the date of service of notice to the applicant or the application to such person। अब जो interim maintenance का ऑर्डर है या कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग का ऑर्डर है, ये एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, प्रैक्टिकली 60 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम किया और वही 1 साल तक चलता रहा। तो 1 साल तक, क्योंकि एम क्या है सेक्शन 144 का, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। जो डे टू डे लाइफ है उसको जीने के लिए वो पैसा चाहिए, तो जितने जल्दी उसको मिलेगा वो खुद को मेंटेन कर पाएगी। इसलिए 60 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन को फाइनल करना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, his legitimate or illegitimate major child unable to maintain themselves due to any physical or mental abnormality, और fourth one is his father and mother unable to maintain herself or himself। ये पर्सन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ सेक्शंस और प्रोविजन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस का ही। तो उम्मीद करता हूं कि आज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।